Friends, I keep telling that SSB is a personality based selection, and to test the personality, the Service Selection Board employs three testing tools. Those are the psychological testing tools, group testing, and personal interview. Now, in the psychological test, there are four tests: TAT, WAT, SRT, and SD. And you know that 70% of the assessment weightage goes to TAT alone, that is the 12 TAT responses. And by analyzing those 12 TAT responses, as much as 70% of your personality is already interpreted by the psychologist. And then there is the third psychological test, which is the SRT. And in one of the SRT Air Force video titled SRT Simplified, I had told that the aim of the SRT are as follows. It helps to identify the candidate's immediate problem solving behavior. What is it? Immediate problem solving behavior. Next, it helps candidate's ability to analyze how he is analyzing the situation and how is he grasping the situation, based on which he gives his response. तो इससे आपकी grasp और analytical skills का पता चलता है. Now, SRT also helps to observe candidates' action and movement through his response analysis, and the candidate's practical ability to solve situation in a rational manner and not in an irrational or fantasy manner. Then it also helps to identify the candidate's conflict resolution strategy under stressful situation, or you can say his stress response can be analyzed. Whether he avoids, whether he confronts, whether he withdraws or faces the stressful situation courageously. तो उसका mental stamina, determination, his ability to take appropriate decisions under pressure, इन सब चीज़ों का भी पता चलता है. Next, candidate's ability to recognize, to organize his responses under pressure and to express it in the written form, in the form of his response to the given situations. इसके अलावा ये भी बताया था कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ SRT के रिस्पॉन्स है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए थे. नेचुरल रिस्पॉन्स को वेटेज दिया था, उसका सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट कितना है वो देखा जाता है, एंड अवॉइडेंस बिहेवियर, एस्केप बिहेवियर के बारे में, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उन घटनाओं को किस दृष्टिकोण से वो एनालाइज कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, इसकी भी एक सही समझ आती है. उसका थ्रेट परसेप्शन, स्ट्रेस परसेप्शन या रिस्क असेसमेंट का भी पता चलता है, वेदर इट इज़ हाई, लो और रियलिस्टिक, या स्ट्रेस को हैंडल ही नहीं कर पाता, इन चीज़ों का पता चलता है. इफ़ ही विड्रॉज, his withdrawal tendencies या his inability to engage with stressful situations, इसका पता चलता है. और अगर ऐसा कुछ है तो आप आर्म फोर्सेस के लिए आप सूटेबल ही नहीं हो, बिकॉज आप स्ट्रेस में बकल हो जाते हो, है ना. प्री मोटर, स्केची रेस्पॉन्स, ऑल दोज थिंग्स. एंड डेफिनेटली ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, तो TAT के ऑब्जर्वेशंस को कन्फर्म करता है. तो नेगेटिव फाइंडिंग्स अगर आ जाए, मतलब आपका रिस्पॉन्स अगर नेगेटिव आ जाए, तो बहुत ही इसका सीरियस इम्प्लीकेशन है इसका असेसमेंट के ऊपर, आपका रिजल्ट के ऊपर. एनीवे, नाउ इससे ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा. मैं आपको एक उदाहरण के लिए सिर्फ एक SRT दिखाऊंगा, एंड डेफिनेटली वो SRT एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डिपिक्ट करता है, और हम इसमें कैंडिडेट का स्ट्रेस रिस्पॉन्स देख रहे हैं. तो पहले हम उस सिचुएशन को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कैंडिडेट का रेस्पॉन्स देखते हैं. 2-3 कैंडिडेट को देखो. इनफैक्ट सरप्राइजिंगली ये है कि ऑलमोस्ट क्लास में 25-26 बच्चे बैठे हुए, एंड फॉर ए कंप्लीट सरप्राइज, ऑल ऑफ देम गेव अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स, जिसको देख के समझ भी नहीं आता कि इन्होंने ये क्या किया रेस्पॉन्स में, हम देख क्या रहे हो, क्या दिखा रहे हैं. एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वंस आई डिस्कस द रेस्पॉन्स, और आप मुझे बताना कि उस रेस्पॉन्स को देख के आपको क्या समझ में आता है. सो द सिचुएशन is like this. He was traveling in train. It was stopped by the Naxalites at a lonely place. There was no sign of police around, so he will. इस सिचुएशन के ऊपर आपको रेस्पॉन्स करने से पहले इसे आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड दी एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि इस सिचुएशन को आप कैसे समझते हो.
तो रीजनिंग भी आ जाता है, आपका रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, ये सब उसमें आ जाता है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर रेस्पॉन्स को देखते हैं। ही वॉज ट्रैवलिंग इन ट्रेन, तो कैंडिडेट कहाँ पे अभी ट्रेन में है और ट्रेन अभी मूव कर रहा है। And then it says it was stopped by the Naxalites at a lonely place. So the train has now been stopped. इसका मतलब इंजन के ऊपर प्रेशर आ गया, इंजन ने, ड्राइवर ने, लोको पायलट ने गाड़ी को रोक दिया। ये खबर आपको कंपार्टमेंट्स में मिल गया, मतलब हवा हो गई, सारे कंपार्टमेंट में टेंशन आ गया होगा, आपको भी पता चल गया कि ट्रेन को रोक दिया गया है और अगले 2 से 3 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट हर कंपार्टमेंट के ऊपर नक्सलाइट घुस जाएंगे और लूटपाट शुरू हो जाएगी। राइट नाउ खबर मिल गई है कि ट्रेन रुक गई है, नक्सलाइट ने रोक दिया है। और कहाँ रोका है? लोनली प्लेस। इसका मतलब एक सुनसान जगह पे है, कोई भी मतलब गाड़ी जा रही जंगल जुंगल के अंदर से, वहाँ पे कोई अगल बगल में रोड नहीं, गांव नहीं, लोग नहीं, वहाँ पे आपको रोक दिया है। देयर वाज नो साइन ऑफ पुलिस अराउंड, ना कंपार्टमेंट के अंदर जो आरपीएफ वाले घूमते हैं वो आपके कंपार्टमेंट में अगल बगल में कहीं नहीं है, और ना बाहर होने की संभावना, बिकॉज एनीवे इट इज अ लोनली प्लेस। नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिकॉज नक्सलाइट्स ने गाड़ी रोक दिया, आपको खबर मिल गई है अगले 2-3 मिनट के अंदर वो आपके कंपार्टमेंट में घुस जाने वाले हैं, और आपसे पूछा गया सो ही विल। सो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड द रिस्पॉन्स टाइमिंग इज वेरी वेरी लिमिटेड, 2 से 3 मिनट का अंदर है। तो आपको क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? आपको याद होगा ऐसा एक सिमिलर केस नायक विष्णु श्रेष्ठा का एक था, रिटायर्ड, आई डोंट नो कितनों को याद है, अगर वो याद है तो जरूर लिखना, नायक विष्णु श्रेष्ठा। और उसमें आपको याद होगा उसमें जो इंसिडेंट हुआ था 2 लेवल पे था। पहला था कि वो लूटपाट कर रहे थे और नायक विष्णु श्रेष्ठा से भी दे आस्क्ड फॉर हिज पर्स एंड मनी एंड ऑल दोस एंड ही गेव इन द फर्स्ट इंस्टेंट। एंड द सेकंड इंस्टेंट देयर वाज अ गर्ल 21-22 ईयर गर्ल नेक्स्ट टू हिम, जिसको कि 3 नक्सलाइट्स ने आके, जो भी लूटरों ने आके उसको छेड़खानी किया और रेप करने की कोशिश किया। इन दैट कंडीशन द सेम विष्णु श्रेष्ठा जिसने बटुआ निकाल के दिया, he took out his kukri and killed 3 people, and the process he also got injured. So there is a similar situation. Now इस situation में since the Naxalite has not yet entered the room, it does not give whether it has give. So there is a safe assumption कि वो अभी अगले 2-3 मिनट के अंदर आ जाएंगे. So the expected response would be कि he will shout and get some people organized कि वो चारों दरवाजे बंद कर दे, दरवाजे के लोहे के शटर बंद कर दे, ग्लास बंद कर दे, और जो ऊपर लैच होता है जो घुमा के डालने वाला होता है ऊपर और नीचे, उसे बंद कर दे, सारे खिड़कियों को बंद करवा दे। ही कैन नॉट डू इट हिमसेल्फ, एट बेस्ट ही कैन लॉक 1 डोर और मे बी 2 डोर जो आमने सामने, बट दूसरे साइड का भी कुछ कंपार्टमेंट लंबा होता है। एवरी विंडो he has to shout and make sure that people with the help of others he gets it communicated। सारे विंडोज के लोहे के शटर बंद और ग्लास बंद, एंड जो 2 वेस्टिब्यूल्स होते हैं जो दूसरे बगल के कंपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करता है, वेस्टिब्यूल जिससे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जाते हैं बाथरूम की तरफ को, उसे भी बंद करना और चिल्ला के दूसरे कंपार्टमेंट वालों को भी बोलना कि अपना साइड का बंद कर दे, ताकि वो ही कैन नॉट डू इट हिमसेल्फ बिकॉज ही कैन डू इट ओनली फॉर हिज कंपार्टमेंट ऑन ओनली 1 साइड, बाकी तो लोगों से करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से 4 दरवाजे और 2 वेस्टिब्यूल और सारे खिड़कियों के शटर बंद लोहे के और कांच के। इसके अलावा अगर ये टाइम नहीं दिया, लोनली प्लेस दिया, अगर ये शाम का टाइम है, रात का टाइम है, सारे लाइट्स बंद और सब बुजुर्गों को, लेडीज़ को, बच्चों को और जो कुछ भी उनको सबको बोलो कि सीट के नीचे सिर करके लेट जा, आवाज़ नहीं करना और शांत रहे, पेशेंस के साथ रहे, बिकॉज अभी मतलब वॉट एवर हैज हैपेंड इट विल हैपन, बट एनीवे इट हैज नॉट हैपन, सो डोंट क्रिएट पैनिक। इससे क्या हो जाएगा, पूरा कंपार्टमेंट में पैनिक आ जाएगा। एंड देन जो वेस्टिब्यूल की तरफ है विच इज़ द वीकेस्ट प्लेस वेयर दे कैन ब्रेक एंड एंटर, वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो भारी सामान को ला के बॉक्स को या भारी सामान को जाके ब्लॉक कर दो सो दैट द एंट्री बिकम्स डिफिकल्ट। एंड उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। Now this is what is the expected behavior in such stressful situation. Now let's see couple of responses to this and we will see कि वो response में क्या है, and उस response में आपका आत्मविश्वास दिख रहा है, आपका ability to take decisions under stressful situation निकल रहा है, आप सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हो या एक कलेक्टिव एक्ट कर रहे हो, आप कैसे स्ट्रेसफुल एंड थ्रेटफुल सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। सो लेट्स टेक द फर्स्ट रेस्पॉन्स। ही राइट्स सो ही विल, है ना, सो ही विल रन अवे एज मच एज पॉसिबल। सो ही सेज ही विल रन अवे,
he will run away, और कितना रन अवे करेगा, as much as possible and hide in some place outside the train, definitely वो रन करके, and let the नक्सलाइट go away. इसका मतलब कब तक वो छुपा रहेगा, जब तक नक्सलाइट अपना लूटपाट करके बाहर ना चला जाए. और ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि वो अपना सेफ्टी को बचा पाए. What happens to his responsibility to his fellow passengers? He is not bothered. He is bothered about protection of the self. Go away and goes to his place. Easily कुछ लिखा हुआ, and inform police about the incident. और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि सर मैं तो भाग गया था लेकिन कोर्ट को. नाउ लुक एट दिस. इमेजिन ये कैंडिडेट कल को ऑफिसर बन जाए और किसी पोस्ट में हो और पहली गोली चले पाकिस्तान की तरफ से, एलओसी की तरफ से, एलएसी की तरफ से, जहाँ से भी है, और ये भाग जाए. क्योंकि जैसे यहाँ पे नक्सलाइट के रोकने मात्र से ये भाग गया, तो do you think this act is an act of courage or an act of cowardice? Or surprisingly, all 24-25 candidates wrote similar response, जहाँ पे उनने खुद को बचाने को टॉप प्रायोरिटी पर रखा. ना फर्स्ट ऑफ ऑल नक्सलाइट जब आएंगे तो डेफिनेटली सबको मारेंगे नहीं, लूटेंगे. ये उस सिचुएशन में इमेजिन ही इज अ पोटेंशियल ऑफिसर एंड ही रन्स अवे and he hides. And not only how does he run away, he will run away as much as possible. Can you see the fear operating? So this is a response under stress जहाँ पे fear manifest हो रहा है. Now let's see couple of qualities जो हम देख रहे हैं और इसमें क्या दिखा है. For example, effective intelligence. Effective intelligence is the intelligence utilized by the candidate in coping with practical situation of varying complexity. Now this is a complex situation, but यहाँ पे self को बचाने का motive था जिसके ऊपर ये act लिखा हुआ है. It is the capacity to evolve independent solution of practical problem and situation. But याद रखो इसके पीछे का intention self को protect करना है, ना कि collective एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाने की क्षमता. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सेल्फ कॉन्फिडेंस. It is the faith in one's ability to meet stressful situation, particularly those that are unfamiliar. Naturally, नक्सलाइट का ट्रेन के अंदर आ जाना is not a familiar situations, are unfamiliar, and उसमें अपना आत्मविश्वास कैसे दिखाया? By running away as much as possible. Whereas what we are looking for is liveliness. It is your capacity to keep the candidate himself buoyant when meeting problems and bring about a cheerful atmosphere. ये तो दूसरों को क्या लाइवलीनेस और इन्फ्लुएंस करेगा, तो खुद ही भाग गया. और अगर आप इसमें देखोगे कि डिटर्मिनेशन इज सस्टेन एफर्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक. इसके अंदर फिक्सडनेस ऑफ पर्पस, मेंटल कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विल. नाउ लुक एट दिस. ही शोड दैट डिटर्मिनेशन टू रन अवे. इट्स नॉट फाइट विद द सिचुएशन, इट इज फ्लाइट रेस्पॉन्स है, भाग जाना, एस्केपिज्म. सोच के देखो कल को एक पोस्ट छोड़ के अगर एक ऑफिसर भाग जाए तो क्या करेगा, है ना. करेज का डेफिनेशन है द एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड टेक पर्पसिव रिस्क विलिंगली. सो पर्पसिव रिस्क में क्या करना है, भैया नक्सलाइट आने से पहले सारे शटर फटर बंद कर दो, सेफ्टी कर दो, एंड देन होप फॉर द बेस्ट. बट यू डिसाइडेड टू रन अवे. Ability to meet appreciated danger. No, there was no ability to meet. You don't have to fight. You cannot fight them because they will shoot you. But you cannot, एकदम सुन्न पड़ गया आपके रेस्पॉन्स में, है ना. कैपेसिटी टू कीप वन सेल्फ कंपोज्ड इन एडवर्स सिचुएशन, एनेबलिंग वन टू बी स्टडी इन फेसिंग एंड हैंडलिंग सच सिचुएशन. नाउ लुक एट द सिचुएशन गिवन एंड लुक एट द रिस्पॉन्स. ही विल रन अवे एज मच एज पॉसिबल एंड हाइड इन सम प्लेस एंड लेट द नक्सलाइट गो अवे. जब तक नक्सलाइट नहीं जो जाएंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा. जब तक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन करके मार पीट के नहीं चले जाएंगे, मैं पत्थर के नीचे से निकल के नहीं आऊँगा. इज एन एक्ट ऑफ करेज और एन एक्ट ऑफ कावर्डाइज.
IMA का मोटो देखो, योर कंट्री फर्स्ट, योर पीपल whom you command come next, your own needs, comfort and safety comes last. यहाँ पे response में your own safety has been put to the highest priority. Can you see IMA क्रेडो को वायलेशन है तो बताना, है ना. नेक्स्ट स्टैमिना पे, लास्ट ओल की स्टैमिना, द कैपेसिटी टू विथस्टैंड प्रोट्रैक्टेड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन. It emphasizes endurance. So definitely this candidate lacks that mental stamina to handle the stress presented to this SRT. Now if you look at the aim of SRT, it helps candidates immediate problem solving behavior. और हमें क्या मिला, ये candidate भाग रहा है ना. It helps candidates action and movement. We can clearly see the action and movement. It helps to understand how the candidate is analyzing the situation and grasping. So he is analyzing the situation and he magnifies the threat perception so much that decides to run away. Negative findings are given more emphasis. So this is definitely a negative finding. And threat oblique stress perception is so much that it takes the best out of him and he decides to run away. Now इसी टाइप से एक और रेस्पॉन्स को देखते हैं, वहाँ पे भी फियर रेस्पॉन्स है. ही विल कॉल द पुलिस, ब्रैकेट में लिखता RPF, एंड हाइड हिमसेल्फ इन एट द सेफ प्लेस. नाउ ट्रेन में सेफ प्लेस कौन सा है मुझे नहीं पता. सोच के देखो, एक पोटेंशियल ऑफिसर कैंडिडेट हु वांट्स टू गो एंड बिकम द लीडर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, व्हेन सब्जेक्टेड टू दिस सिचुएशन, द नक्सलाइट्स हैव नॉट इवन कम. उस 2-2.5 मिनट के रेस्पॉन्स टाइप के ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा और बोलता RPF को कॉल कर देगा. पहले तो RPF का नंबर कहाँ से आएगा, 100 तो नॉर्मल पुलिस का, बट यू हैव बीन स्टॉप्ड एट अ लोनली प्लेस. एंड ही राइट्स ही विल कॉल द RPF and hide himself in the safe place. Why is he hiding in the safe place? Because बाकियों का क्या हो, I'm not bothered. I'm bothered about my own personal safety. Imagine if he is your company commander and if your company commander behaves like this, will you be volunteering to go under him? I don't think you will. Next is, एक और देखते हैं, लिखता है he will find a safe spot with the help of the ticket collector. तो वो TT के पास जाएगा और TT से पूछेगा, सर सेफ स्पॉट कहाँ पे ट्रेन में, इन द ट्रेन दैट कैनॉट बी इन्फिल्ट्रेटेड. आप 20-22 साल लड़के हो, आपने बहुत बार ट्रेन में ट्रैवल किया और ना, मुझे बताओ ट्रेन में ऐसा कौन सा सेफ स्पॉट है जहाँ पे नक्सलाइट नहीं घुस सकता, और TT आपको बता देगा. बेवकूफ़ी वाला है, फैंटेसी वाला रिस्पॉन्स है. यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपके जीवन के अनुभव ट्रेन में ट्रैवल करने को उसको कंबाइन नहीं कर पा रहे. ही सेज ही विल फाइंड अ सेफ स्पॉट विद द हेल्प ऑफ टिकट कलेक्टर इन द ट्रेन दैट कैन नॉट बी इन्फिल्ट्रेटेड बाय द नक्सलाइट. तो ट्रेन में कोई ऐसी गुप्त जगह है जहाँ पे ये अपने सेफ स्पेस को ढूंढेगा. एंड ट्राई मेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स. अगर एक सेकंड क्लास का बोगी है तो उसमें एक कंपार्टमेंट में 72 बर्थ होते हैं, तो 60-70 लोगों को उस सेफ प्लेस में ले जाएगा जिसमें कि नक्सलाइट इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता. लुक एट दिस इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज ए टेक्निकल एंट्री स्कीम का बंदा. तो एक टेक्निकल एंट्री इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ, 20-25 साल का उम्र हो गया है, क्या वो ट्रेन में ऐसा कोई स्पॉट बता सकता है जहाँ पे ये काम कर सकता है, जहाँ पे 60-70 लोगों को, मैक्सिमम लोगों को छुपा सकता है. दिस इज अगेन ए irrational kind of a response. क्या समझ में बताना. And try making maximum number of passengers and his family to that safe spot oblique compartment. So again safe spot and compartment में जाके, instead of that अगर वो एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता, that would have been much better. तो मुझे ज़रूर बताना कि इस टाइप के रेस्पॉन्सेज ये कन्फर्मेटरी टेस्ट में जब लिखेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट में लिख रहे हो और आपका फियर रेस्पॉन्स, अनफॉर्चुनेटली ऑल 25-26 पीपल रेस्पॉन्डेड इन दिस मैनर. दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. कभी कभी कुछ लड़के एक बार लिख देते हैं कि दे विल क्लोज द शटर, दरवाजा एंड ऑल दैट. यहाँ पे नन ऑफ देम डिड दैट. सो इट्स वेरी स्ट्रेंज ऐसा रेस्पॉन्स आया. मुझे बताना क्या समझ में आया, एंड मुझे बताना कि क्या ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अपने वीकनेस में लिखेगा कि अंडर प्रेशर आई टेंड टू रन अवे, आई कैन नॉट फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. आप बताओ ये लिखेगा? कभी नहीं लिखेगा. बट ही इज गिविंग सच रेस्पॉन्सेज इन द कन्फर्मेटरी टेस्ट, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. तो मुझे बताना क्या समझ में आया, और इस तरह के रेस्पॉन्स को साइकोलॉजिस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट में किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेगा. और आप लोगों को एक वीडियो को सजेस्ट करूँगा. दैट वीडियो इज असेसमेंट ऑफ
प्रोजेक्टिव टेक्निक, A4 का वीडियो है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, उसे ज़रूर देखना एंड मुझे बताना क्या समझ में आया, ज़रूर अपने कमेंट्स को बताना एंड let's see how does this video help you to understand your own inner self in terms of taking decisions. इसके अलावा ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट और उसका वीडियो बेस्ड रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा. इसके लिए जो लोग इंटरेस्टेड है आप 9090099035 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड आई शेयर यू द डिटेल्स. उससे आपको एक बहुत क्लियर परसेप्शन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट. एंड उसके अलावा हर मंडे को पुणे में 2 वीक्स का ऑफलाइन कॉम्पोजिट बैच कंडक्ट किया जाता है. इसके लिए भी आप रजिस्टर करना हो तो 9090099035 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो. इसके अलावा एक और नंबर है 7798647177. इन दोनों नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. एंड अगर PG/हॉस्टल बुकिंग चाहिए आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए, अगेन 7798647177 पे यू कैन कॉन्टैक्ट and you can book your PG/hostel in advance. And hope to see you in last number. If you're not already shared this channel, kindly share it, subscribe it, and do comment on this video. Thank you and may God bless you. Thank you very much.